Assalamu alaikum everyone. This is Hefsa Waheed here with a detailed description on some past paper MCQ from first 5 chapters. I hope this helps you in your exams. Let's get started. I'll make sure to cover as many MCQ from this document as we can without exceeding, of course, a certain time duration. So let's get started. The very first question here we have is, what is a reasonable estimate of the kinetic energy of a car traveling at the speed of 30 meters per second? जाहिर है एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि आप एस्टिमेटेड वैल्यूज किनेटिक एनर्जी की याद करके बैठे होंगे, राइट? बट जाहिर है वो आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको किनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये किस पर डिपेंड करती है, वो सारी चीजें पता होनी चाहिए. सो द वेरी फर्स्ट स्टेप वी विल टेक टू सॉल्व दिस क्वेश्चन हियर इज विल राइट डाउन द फार्मूला फॉर किनेटिक एनर्जी. इट इज एम बी स्क्वायर. सी मुझे ये तो आइडिया नहीं है कि किसी कार की जो इस स्पीड पे मूव कर रही है उसकी किनेटिक एनर्जी क्या, लेकिन हाँ जब ये मुझे स्पीड बता चुके हैं तो मुझे एक रैंडम आइडिया जरूर है कि किसी कार का मास कितना हो सकता है ऑन एवरेज, राइट? नहीं भी है तो आप इन चारों गिवन किनेटिक एनर्जी से मास निकालेंगे, राइट? एंड यू विल सी which value of mass is making the most sense, right? And फिर आप कहेंगे कि उससे corresponding जो भी kinetic energy है, it must be the kinetic energy of that said car. For suppose अगर मैं पहले वाले के लिए करूं, पहले इसको रीराइट कर लेते हैं. I can write 2 times kinetic energy divided by the square of velocity will give you the value of mass, right? So first let's calculate m1, that is option A के लिए. Let's call it ma. We'll write 2 times given kinetic energy in option A, that is 10 raised to the power 2, square of velocity, it is 30 square. Put these values in your calculator and you'll get 0.2 kg, right? Is it possible for a car to have 0.2 kg mass? It's not possible. Do the same with option B. We'll write mb, that is 2 times the kinetic energy given in option B divided by the square of velocity, that is 30 square. It is going to give you 22 kg. It also does not make sense. When you do this for this third option, let me do it here. It is 2 times kinetic energy given in option C over square of velocity, that is 30 square. Putting these values in your calculator will give you 2222 kg, right? This is a value that is making comparatively more sense. You will also try doing the same with option D and you'll see कि option D में जो आपके पास value आ रही है, it is around this one, right? So of course this also does not make sense. This right here is the value that makes the most sense, right? So this will make you conclude that the kinetic energy for a car that is moving with this velocity must be this one. Then we have another question. It says the power produced by force moving an object is given by the equation this, which quantities are scalar and which are vectors. अभी तक जाहिर है I am expecting कि आपको basic definition, description और कुछ examples scalar और vector की पता है. If this is the case, then it should not be difficult for you to know that option B here is the correct answer. What is the problem with the rest of the options? Displacement is not a scalar, it is a vector physical quantity. Here force is not a scalar, it is a vector physical quantity. यहाँ पे ठीक है, both of them are scalar physical quantities, but then the problem lies here. Power is not a vector physical quantities, is scalar, right? So option B is the only option जिसमें कोई discrepancy नहीं है. Power and work are scalar physical quantities and displacement and force they are vector physical quantities. So yes, option B is correct option. देन ये तो थियोरेटिकल एमसीक्यू है, यू शुड बी एबल टू आंसर इट. आपसे कह रहे हैं एक रॉड है जो कि हीट अप होने की वजह से एक्सपेंड हो गया है, तो अब जाहिर है उसकी स्केलिंग जो है वो डिस्टोर्ट हो गई होगी जरा. सो यस देयर इज अ सिस्टमैटिक एरर. वी विल नॉट बी कॉलिंग इट अ रैंडम एरर, राइट? सिस्टमैटिक एरर है बट इसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, राइट? जिसको आप प्लस या माइनस कर सके अनटिल एंड अनलेस वो आपसे कहते हैं कि आपने कोई एक स्टैंडर्ड का फिर स्केल था उसके साथ कंपेयर किया एंड सो ऑन, राइट? जब तक उन्होंने ये बात मेंशन नहीं की आप इस सिस्टमैटिक एरर को कंप्लीटली एक्सक्लूड नहीं करवा सकते, राइट? तो आप अपनी रीडिंग को एक्यूरेट नहीं कर सकते. हाँ आप मल्टीपल रीडिंग्स लेकर उनको एवरेज करके अपनी रीडिंग को प्रिसाइज जरूर कर सकते हैं. Then velocity of an electric car changes as shown, like at time zero the car started with zero velocity.
and the velocity kept on increasing with constant acceleration, because either slope of velocity time graph shows you the trend of acceleration, and this graph right here shows that the slope is constant. That is, we'll be saying that the acceleration is constant, right? And the graph right here shows कि 4 सेकंड के बाद जो आपके पास velocity आ रही है, it is this one. एंड जब मैं इसकी स्केलिंग को देखूंगी 100 से 150 तक जाते हुए, दैट इज टोटल 50 के डिफरेंस में टोटल 10 बॉक्सेस आ रहे हैं मेरे पास, तो इसका मतलब है वन स्मॉल बॉक्स कॉरेस्पॉन्ड्स टू 5. ऑल्सो डू नॉट मिस दिस राइट हियर, 5 किलोमीटर्स पर आवर. सो अगर मैं ये कहूँ कि स्टार्टिंग में वेलोसिटी थी जीरो, लाइक एट टाइम t इक्वल जीरो वेलोसिटी वाज 0 किलोमीटर्स पर आवर, एंड एट टाइम 4 सेकेंड वेलोसिटी रेज्ड टू 105 किलोमीटर्स पर आवर. ये जरा डिस्क्रिप्शन जहन में रखें. नाउ आंसर दिस क्वेश्चन. दे आर आस्किंग यू टू राइट डाउन द एक्सेलरेशन ऑफ द कार. क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है तो जाहिर है हम डायरेक्ट फार्मूला लगाकर ग्राफ का स्लोप डायरेक्टली निकालकर फाइंड आउट कर सकते हैं एक्सेलरेशन, राइट? एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से आता है, राइट? दैट इज वाई एक्सिस पर जो वैल्यू है उसका चेंज, दैट इज वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, एंड वेलोसिटी में उतना चेंज लाने के लिए टाइम में कितना डिफरेंस था, राइट? सो मेरे पास दो वैल्यूज हैं. मुझे पता है टाइम टोटल 4 सेकंड का जब गुजरा, फाइनल माइनस इनिशियल, राइट? इतने में वेलोसिटी में कितना डिफरेंस आया, जीरो से इंक्रीज होकर 105 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच गई. सो आई जस्ट प्लेस दीज वैल्यूज इन दिस फार्मूला और मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 29.2, राइट? सी ऑप्शन से मैच ही नहीं हो रहा, किसी भी ऑप्शन से ये मैच नहीं हो रहा. यहाँ पर आपको एक बात जो नोटिस करनी चाहिए, इट इज टाइम तो ठीक है सेकंड्स में गिवन था ग्राफ में, लेकिन जो ग्राफ में वेलोसिटी की वैल्यूज थी देवर इन किलोमीटर्स पर आवर. हमने जो वेलोसिटी की वैल्यू ऑप्शन में से मैच करनी है, दे आर इन मीटर्स पर सेकंड. तो आप कन्वर्जन फैक्टर लगाएंगे. यू हैव 29.2, you will have to multiply it with 1000 to first convert this kilometer into meter, and then you'll divide it with 3600 to convert this hour into second as well. Put these values in your calculator and you'll get final answer 7.29, which you can round off to 7.3 meters per second square. That is option D here. Then we have another question here from projectile motion. A projectile is fired from point P with velocity v at an angle theta to the horizontal. It lands at point Q, a horizontal distance r from P after time t. The acceleration of free fall is g, air resistance is negligible. Which equation is correct? प्रोजेक्टाइल की रेंज के लिए ये चारों इक्वेशन है, राइट? अब आपसे पूछ रहे हैं इसमें से कौन सी इक्वेशन करेक्ट है. अगर आप प्रोजेक्टाइल के बेसिक टॉपिक को रिकॉल करें तो आपको याद आएगा प्रोजेक्टाइल में हम कहते थे जो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ते थे ना, 3-4, आप उनको एक्स डायरेक्शन के लिए अलग लिखते हैं एंड आप उसको वाई डायरेक्शन के लिए अलग लिखते हैं, राइट? और उसमें भी हम पढ़ते थे कि जो हमारे पास तीन इक्वेशंस थी, 2as इक्वल्स v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर एंड s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड देन v इक्वल्स टू u प्लस at. हम कहते थे ये तीन जो इक्वेशंस हैं ये एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशंस है, राइट? एंड प्रोजेक्टाइल एक्सेलरेशन सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करता था, दैट वाज द एक्सेलरेशन ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी. हाँ, अगर वर्टिकल डायरेक्शन में हम फ्रिक्शन को इग्नोर ना करते तो फ्रिक्शन की वजह से भी एक एडिशनल एक्सेलरेशन आता वर्टिकल डायरेक्शन में, राइट? इसी तरह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो जाहिर है ग्रेविटी की वजह से कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, राइट? सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम कहते थे देयर इज गोइंग टू बी नो एक्सेलरेशन ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी. अगेन, अगर एग्जामिनर आपसे कहते हैं कि आप फ्रिक्शन को कंसिडर करें तो फिर हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्रेविटी की वजह से भले ही कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन. लेकिन जब आप प्रोजेक्टाइल की डिस्क्रिप्शन भी पढ़ते हैं और इवन यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में भी इन्होंने मेंशन किया है कि एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक वाहिद फोर्स थी जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवा सकती थी, आपने उसको भी इग्नोर किया, राइट? इसका मतलब है मैं कह सकती हूँ प्रोजेक्टाइल इज नॉट एक्सपीरियंसिंग एनी एक्सेलरेशन इन इट्स हॉरिजॉन्टल जर्नी, राइट? इसका मतलब है ये जो तीन एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशंस है, ये मैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस व्हिच इज रेंज
कैलकुलेट करने के लिए नहीं लगा सकती, राइट? सो आई एम लेफ्ट विद द ओनली इक्वेशन दैट इज s इज इक्वल्स टू ut। और हम डिस्क्रिप्शंस में जो बेसिक छोटी छोटी डेरिवेशंस करते हैं, मैक्सिमम हाइट की, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट की, टाइम ऑफ फ्लाइट की, हाइट की, उसमें हम ये वाला कॉन्सेप्ट डिटेल में भी देखते हैं, right? So now that I am using this equation for horizontal motion, मुझे distance कौन सा रखना चाहिए? Horizontal distance, right? And horizontal distance is nothing but range. मुझे velocity कौन सी रखनी चाहिए? कि velocity है, right? मैं resultant velocity नहीं रख सकती. Now that I am applying this equation strictly for horizontal motion, I should be writing the value of velocity, that is horizontal component of velocity, right? And we know that horizontal component is, अगर मैं initial velocity को v कहती हूँ तो इसका horizontal component होना चाहिए v cos theta, right? And then t must be the time the projectile took to cover this distance, which is range. So total range cover करने में projectile ने कितना time लिया? They've mentioned it is capital T, right? So you should be writing t here. And जाहिर है option के हिसाब से आप इसको rearrange करके ऐसे लिख सकते हैं. आई एम होपिंग कि ये जो बी कॉस थीटा वाला कॉन्सेप्ट है ये अभी तक आपको पता है, राइट? कि कैसे आप ट्राइंगल बनाते हैं, फिर आप उसकी बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस के हिसाब से देखते हैं कि इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए हमने कॉज लगाना है या हमने साइन लगाना है. सो यस, द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए. When this is a graph, it should be very easy for you to understand. बस मेरे ख्याल में जो आपको यहाँ पर confusion हो सकती है वो ये है कि आपसे कह रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, स्टार्ट किया था रेस्ट से, फिर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस कर रहा है ऑब्जेक्ट, राइट? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. जब मैं कहती हूँ कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस कर रहा है, इसका मतलब है उसकी वेलोसिटी एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ इंक्रीज करती जा रही है. जब वेलोसिटी का कांस्टेंट इंक्रीज आप जहन में लाते हैं तो फिर आपके जहन में आता है कि ठीक है, मोमेंटम भी कांस्टेंट इंक्रीज होना चाहिए. उस केस में आप कहेंगे कि ये ट्रेंड आना चाहिए, राइट? लेकिन सी, अगर तो ये मोमेंटम और टाइम का ग्राफ होता तो फिर आप एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना देते और आप कहते हैं इन एवरी फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम मोमेंटम इक्वली इंक्रीज हो रहा है. लेकिन जो पॉइंट टू पे अटेंशन है वो ये है, आप मोमेंटम और टाइम का ग्राफ नहीं प्लॉट कर रहे. आप ये बता रहे हैं कि टाइम गुजरने के, आप ये बता रहे हैं कि जैसे जैसे उसका मोमेंटम बढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो कैसा है? क्या वो ग्रेटर मोमेंटम पर भी बराबर ही डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, या जैसे जैसे उसका मोमेंटम यानी उसकी स्पीड बढ़ रही है, बिकॉज जाहिर है मास तो कांस्टेंट है, वो पहले के मुकाबले में ग्रेटर डिस्टेंस कवर कर रहा है. द लेटर वन इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन, राइट? तो मैं कहूंगी पहले कुछ ना कुछ वैल्यू थी मोमेंटम की, इसके ऑब्जेक्ट ने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया. उसके बाद जब सेम इंटरवल गुजरा, सी, ऑब्जेक्ट ने पहले इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया था, इस बार पहले से ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, एंड दिस इज समथिंग व्हिच मेक्स सेंस, राइट? ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज हो रही है ना, स्पीड इंक्रीज होने का मतलब है गिवन टाइम में वो पहले से ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, राइट? सो दिस राइट हियर इज द ग्राफ दैट मेक्स सेंस. ये तो कहता है कि बराबर डिस्टेंस ट्रैवल करा, यानी जब उसकी वेलोसिटी 2 मीटर्स पर सेकंड थी तब उसने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था, उसकी वेलोसिटी 4 भी हो गई तब भी उसने उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल किया, व्हिच इज समथिंग दैट डज नॉट मेक सेंस. दिस ग्राफ सजेस्ट कि जैसे जैसे उसकी एक्सेलरेशन की वजह से उसका मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है, वो पहले के मुकाबले में कम से कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है. सी, पहले एक फिक्स वैल्यू ऑफ मोमेंटम पे ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, अगली बार उतना ही जब चेंज आया मोमेंटम का, सी, ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, पहले से कम. एंड गिवन दैट द कार इज एक्सेलरेटिंग, दिस शुड नॉट बी द केस. डिस्टेंस बढ़ता जाना चाहिए हर बार, राइट? एंड दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन. इट सेज के ऑब्जेक्ट का तो डिस्टेंस ही नहीं चेंज हो रहा, इवन दो इट इज मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी, दैट टू व्हिच इज इंक्रीजिंग with the passage of time, right? So this of course is out of option. Correct option is option A here. Then this right here is a very basic question. All you should know to answer this question is किसी equation को rewrite कैसे करते हैं, right? और resultant force का concept क्या है हमारे पास? आपसे कह रहे हैं resultant force F on a raindrop of mass m falling with velocity v is given by the equation right here. K is the constant and g is the acceleration of free fall. What is the velocity of raindrop when it reaches a constant terminal velocity? To answer this question आपको terminal velocity का आइडिया होना चाहिए. हम कहते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल मोशन में है तो जाहिर है डाउनवर्ड फोर्स तो उस पर उसके वेट की वजह से है ही, जो भी है, राइट?
जब आप इनिशियली ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं तो इस टाइम पे अपवर्ड फोर्स कोई नहीं होती, बिकॉज एट द टाइम ऑफ रिलीज फ्री फॉल, राइट, यू आर नॉट थ्रोइंग एन ऑब्जेक्ट, यू आर जस्ट रिलीजिंग इट, राइट। एट द टाइम ऑफ रिलीजिंग एन ऑब्जेक्ट उसकी स्पीड होती है 0, एंड जो एयर रेजिस्टेंस है, जो ड्रैग फोर्स है, वो हम पढ़ चुके हैं स्पीड पर डिपेंड करती है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है ड्रैग फोर्स बढ़ती जाती है। तो स्टार्ट में क्योंकि ऑब्जेक्ट की स्पीड 0 थी, अपवर्ड फोर्स व्हिच ऑफ कोर्स opposes द डाउनवर्ड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ड्रैग फोर्स, इट वाज 0। as the object kept on moving downward force तो weight की वजह से वो तो कांस्टेंट है, बिकॉज जाहिर है ना तो ग्रेविटी चेंज हो रही है ना ही मास चेंज हो रहा है। लेकिन अपवर्ड फोर्स वुड स्टार्ट इंक्रीजिंग बिकॉज ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो रही है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से। टाइम विल रीच इन द डाउनवर्ड जर्नी जब अपवर्ड फोर्स इंक्रीज होते होते डाउनवर्ड फोर्स के एग्जैक्टली बराबर हो जाएगी। सी, एक ऑब्जेक्ट रेन ड्रॉप, दो ही फोर्सेस लग रही थी, दोनों की डायरेक्शन तो ऑपोजिट थी, लेकिन डाउनवर्ड जर्नी में एक पॉइंट ऐसा आया कि अब दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर हो गया। टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, दे विल कैंसल आउट ईच अदर्स इफेक्ट। एज अ रिजल्ट वील से कि ऑब्जेक्ट कोई नेट फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा, नेट फोर्स नहीं है, एक्सेलरेशन इज जीरो, एक्सेलरेशन इज जीरो। This makes us conclude that change in velocity is zero. And when we say change in velocity is zero, then this becomes obvious कि object की velocity अब constant है. This constant velocity is called terminal velocity, right? Now that you know the basic idea, अब आपको पता है अगर object terminal velocity अपनी reach कर गया है, इसका मतलब है कि उस पर लगने वाली net force zero है. See, force due to weight, force due to drag, दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो गई, सो रिजल्टेंट फोर्स शुड बी जीरो। तो मुझे क्या करना है इस एक्सप्रेशन में, इस रिजल्टेंट फोर्स वाले इस आइडिया को ऐड करना है। तो मैं कहूंगी वैसे तो इक्वेशन वाज दिस वन, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ने टर्मिनल वेलोसिटी रीच कर ली इसका मतलब है रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। ये आ गई इक्वेशन। जस्ट रीराइट दिस इक्वेशन, यू राइट mg इक्वल्स kv स्क्वायर। किसके लिए एक्सप्रेशन बनाना है, टर्मिनल वेलोसिटी के लिए। This becomes mg over k, and see this right here is the expression for a square of terminal velocity, so we'll cancel this square by taking a root, but then side compensate करने के लिए we'll do the same on right side as well. See, you ended up getting this expression for terminal velocity. It is mg over k. Option C is the correct option. Then we have another question. It says a wooden block rests on rough surface of a board. One end of the board is then raised until the block slides down the board at constant velocity. What describes the forces acting on the block when it is sliding with constant velocity? Pay attention to this point right here. अब जाहिर है ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के साथ कांटेक्ट में है तो इट इज ऑब्वियस कि फ्रिक्शनल फोर्स भी होगी, राइट। फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, जैसे हम कहते हैं ना ग्रेविटेशनल फोर्स विल ऑलवेज बी डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट विल ऑलवेज बी डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड। फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हम कहते हैं व्हाटएवर इज द डायरेक्शन इन व्हिच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, frictional force would point in the exact opposite direction because it is a force that opposes the motion of an object. So they've mentioned it very clearly that the object is moving down the slope. This makes me conclude कि frictional force की direction क्या होनी चाहिए? It should be up the slope या up the board, right? But see, here we have two options with the description on frictional force, that is up the board. Now we need to see which one of these two options is correct because of course A and B are incorrect. अब देखें रिजल्टेंट फोर्स के बारे में आप क्या आइडिया लगाएंगे। यहाँ पर शायद कोई बेसिक डिस्क्रिप्शन नहीं दी इन्होंने क्वेश्चन में रिजल्टेंट फोर्स के लिए, लेकिन दे ऑलरेडी मेंशन दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। जो अभी मैंने पीछे एक आध बातें बताई थी उन्हीं को रिकॉल करें। मैं कहती हूँ कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब है यकीनन चेंज इन वेलोसिटी इज जीरो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। तो एज सून एज आई से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का चेंज जीरो है, इसका मतलब है मैं कह रही हूँ एक्सेलरेशन जीरो है। न्यूटन का सेकंड लॉ रिकॉल करें, इट सेज एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स। मास तो ऑब्जेक्ट का जीरो है नहीं, जाहिर है इस ब्लॉक का कुछ ना कुछ मास है, तो अगर एक्सेलरेशन जीरो है इसका मतलब है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो। जाहिर है ऑब्जेक्ट पे फोर्सेस लग रही हैं, कुछ डाउनवर्ड फोर्स भी है, वेट का कोई कंपोनेंट भी होगा, फ्रिक्शनल फोर्स भी है, लेकिन इन सारी फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है इट इज जीरो। सी,
रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट डाउन दी बोर्ड। अगर ऐसा होता तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा होता डाउनवर्ड, कांस्टेंट वेलोसिटी से ना आ रहा होता डाउनवर्ड। सो या द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन डी। देन कौन सा स्टेटमेंट है जो कपल को बेस्ट डिस्क्राइब करता है? कपल इज इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस जो कि रोटेशनल मोशन जनरेट करती हैं। बड़ी कॉमन हम एग्जांपल देते हैं गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, राइट? एक हाथ से आप यहाँ पर अपवर्ड डाउनवर्ड फोर्स लगा रहे होते हैं, दूसरे हाथ से आप यहाँ पर अपवर्ड फोर्स लगा रहे होते हैं, रिजल्ट में रोटेशनल मोशन आता है। बट ये व्हील कोई ट्रांसलेशनल मोशन नहीं देता, ना इस साइड पे ना इस साइड पे, ना अपवर्ड ना डाउनवर्ड, राइट? So yes, this is the description of couple. Option A is correct. I think इतनी description काफी है इसके लिए. Then we have a question right here. It says a uniform rod XY of weight 10 Newton because it is uniform, तो it is understood कि जो symmetrical objects होते हैं उनका weight उनके exact center पर act करता है, right? So हमने कहा इसका weight यहाँ कहीं इसके center पर act कर रहा होगा. It is freely hinged to a wall at X. It is held horizontal by a force F that is acting from Y at an angle theta that is 30 degree to the horizontal. एंड आपको क्या करना है? आपसे कह रहे हैं फोर्स F की मुझे वैल्यू बताएं। जब भी आप कोई ऐसे क्वेश्चंस देखें पेपर में, सो जस्ट पे अटेंशन। आपको इक्विलिब्रियम के बारे में कोई आइडिया उन्होंने प्रोवाइड किया या नहीं किया, राइट? दे आर सेइंग कि दी रॉड इज हेल्ड हॉरिजॉन्टल, यानी उस पर फोर्सेस लग रही, उसके बावजूद भी in it is maintaining its horizontal position, right? तो आप कहेंगे ये वो पॉइंट है जिसके अराउंड ये रॉड मूव कर सकता था, राइट? डिपेंडिंग ऑन आपने यहाँ से इस स्ट्रिंग के जरिए कितनी फोर्स एक्सर्ट की है इसके ऊपर। अगर इसके बावजूद भी ये रॉड मूव नहीं कर रहा, दैट इज काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब है मूवमेंट अबाउट दिस पॉइंट इज इक्वल, राइट? अब देखें इस पॉइंट के अराउंड कितना मूवमेंट है। एक तो ये फोर्स है, इसकी वजह से कुछ ना कुछ मूवमेंट होगा, मैं कह रही हूँ पिवट ये है, राइट? इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी? क्लॉकवाइज। सो एक टॉर्क तो आ जाएगा, ये कैसे? फोर्स एक्टिंग एट दिस पॉइंट टाइम्स द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द पिवट। क्लियर? जाहिर है नहीं दिया डिस्टेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं, अज्यूम कर लें। इसी तरह दूसरी फोर्स कौन सी लग रही है? इस पॉइंट पर इन्होंने एक फोर्स लगाई है, राइट? अब सी मैं यहाँ पर वो मोमेंट वाला डायरेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई कर सकती इस फोर्स एफ पर। क्यों? फिर से रिकॉल करें मोमेंट वाला टॉपिक। हम पढ़ते थे टॉर्क निकालने के लिए जो आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट रखते थे, इसमें इन दोनों का 90 डिग्री पे होना बहुत जरूरी है। यानी अगर आप सेपरेशन इस केस में ये वाली कंसिडर करेंगे पिवट से, तो आप फोर्स कौन सी लेंगे? जो इस पॉइंट पर यानी इस हॉरिजॉन्टल सेपरेशन से 90 डिग्री पर, यानी इधर इट इज डायरेक्टेड अपवर्ड और इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, राइट? किसी सर्टेन एंगल वाली फोर्स मैं नहीं ले सकती। इसीलिए रिकॉल करें वो क्वेश्चंस जो हमने क्लास में किए थे। हम कहते थे ठीक है अब इन्होंने जो फोर्स दी है वो किसी एंगल पर है, हमें क्या करना है? आप इस एंगल वाली फोर्स को रिजॉल्व करें इसके कंपोनेंट्स में, और आप उस फोर्स का सिर्फ वही कंपोनेंट कंसिडर करें इस टॉर्क वाली इक्वेशन में which is at 90 degree to the horizontal distance. So we are going to do the same thing here. यहाँ इन्होंने ये फोर्स F मेंशन की है, ठीक है, मुझे निकालनी F की ही वैल्यू है, राइट? लेकिन उससे पहले मुझे बेसिक स्टेप टॉर्क के लिए तो जो फॉलो करना है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट का है। तो मैं इस फोर्स F को ब्रेक करूंगी टू कंपोनेंट्स में। One is going to be this one and the other one is going to be this one. ये मैंने फोर्स के दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया। अब बताएं क्या मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है ये आइडेंटिफाई करना कि मुझे दोनों में से कौन सा कंपोनेंट कंसिडर करना है? जाहिर है मुझे वर्टिकल कंपोनेंट कंसिडर करना है, बिकॉज अभी हमने टॉर्क की डिस्क्रिप्शन पढ़ी तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो मैंने कंसिडर नहीं करना। कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं, राइट? मुझे वर्टिकल कंपोनेंट कंसिडर करना है। अच्छा आप चाहें तो अपनी आसानी के लिए ये जो वेक्टर आपने यहाँ पर बनाया है इसी को डिस्प्लेस करते हुए इधर ले आए, बिकॉज वेक्टर्स की तो बेसिक कंडीशन हम पढ़ लेते ना कि अगर आप उनका मैग्नीट्यूड भी नहीं चेंज कर रहे, यानी एरो की लेंथ भी नहीं चेंज कर रहे, और आप उसका डायरेक्शन यानी एरो जिस डायरेक्शन में पॉइंटेड है वो भी नहीं, आप ओरिएंटेशन भी नहीं चेंज कर, तो फिर आप वेक्टर को कहीं भी पैरेलल मूव करवा सकते हैं। तो अपनी आसानी के लिए इसे यहाँ पर मूव करवा दें अगर आप चाहें तो, राइट? और फिर आप वैल्यूज निकाल लें। तो मैंने इसको यहाँ पर मूव करवा लिया, या चले नहीं मूव करवाते बिकॉज आई
थिंक आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसको फिलहाल मूव नहीं करवाते, राइट। ये आ गया मेरे पास कंपोनेंट, मुझे इस कंपोनेंट की पहले वैल्यू पता करनी है, राइट। बिकॉज उस वैल्यू को मैं फार्मूला में रखूंगी, टॉर्क के बराबर होने का कॉन्सेप्ट लगाऊंगी और फिर मुझे वाई कंपोनेंट पता चल जाएगा। लेट्स जस्ट डू दिस। पहले मैं इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ वाई की। मुझे कैलकुलेट करनी है एफ की वैल्यू, ठीक है। मैंने कहा मुझे एफ नहीं पता बट मुझे ये एंगल थीटा पता है। हम वेक्टर्स की डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। अगर आपको किसी वेक्टर का एंगल पता है एंड आपको कोई एक कंपोनेंट उसका पता है, तो आप उस वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? fx will be f times cos या sin of an angle. इसी तरह fy will be f times cos या sin of an angle, depending on base किधर लाई करता है एंड hypotenuse किधर लाई करता है। इसीलिए मैं स्ट्रिक्टली यहाँ पर नहीं लिख रही कि यहाँ पर cos ही आना चाहिए एंड यहाँ पर sin ही आना चाहिए। हमने अग्री किया था, हम डायग्राम के हिसाब से देख लेते हैं, राइट। तो मैं क्या चाह रही हूँ, मैं ये चाह रही हूँ कि मुझे थीटा तो पता है, एक दोनों में से कोई भी एक कंपोनेंट पता चल जाए, फिर मैं इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन लगाकर एफ की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगी। अब वो कंपोनेंट इस इक्वेशन से ऑब्वियस था, मैं वाई कंपोनेंट निकाल सकती हूँ टॉर्क का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके, राइट। तो मैंने कहा दो टॉर्क्स हैं, एक तो ये है क्लॉकवाइज और एक ये लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये रॉड स्टेशनरी है, इट इज हेल्ड हॉरिजॉन्टल, तो जो क्लॉकवाइज टॉर्क होगा वो एंटी क्लॉकवाइज के बराबर आना चाहिए। क्लॉकवाइज टॉर्क कैसे आएगा? दिस फोर्स टाइम्स दिस सेपरेशन, तो इट इज 10 न्यूटन इनटू सेपरेशन कौन सी रखूं, इन्होंने तो बताई नहीं, कोई बात नहीं। अपनी मर्जी से इस रॉड की कुछ भी लेंथ अज्यूम कर लें। आई एम हियर अज्यूमिंग कि इसकी लेंथ है 2 मीटर, तो ये मिड पॉइंट बिल्कुल क्या होना चाहिए? इट शुड बी 1 मीटर, ठीक। तो मैंने इस फोर्स के लिए डिस्टेंस रखा 1 मीटर एंड मैंने इस फोर्स के लिए फिर डिस्टेंस क्या रखा? 2 मीटर्स रख लिया। आप चाहें तो इस डिस्टेंस को एल का नाम दे दें, इसको एल का एग्जैक्ट हाफ दैट इज एल डिवाइडेड बाय 2 का नाम दे दें, दैट इज अप टू यू, राइट। कोई वेरिएबल कंसिडर करना चाहते हैं तो वो करें, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू कंसिडर करना चाहते हैं तो आप वो करें। तो ये मेरे पास डिस्टेंस आ गया। अब मुझे रखना है इस डिस्टेंस पर जो फोर्स है वो, राइट। एंड वी हैव सीन कि इट शुड बी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कौन है? एफ या एफ का ये वाला कंपोनेंट, दिस कंपोनेंट ऑफ एफ इज परपेंडिकुलर, क्लियर। तो मुझे ये कंपोनेंट रखना है इधर। कैसे रखूं इस कंपोनेंट की वैल्यू, तो मुझे पता ही नहीं है, देख लेते हैं अभी। ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, राइट, विद 90 डिग्री हियर। इस एंगल को मैं क्या नाम दे सकती हूँ? अगर ये 30 है तो मैं कहूंगी यकीनन ये जो इंटीरियर एंगल है इट इज 60। उसके साथ आप मजीद क्या कर सकते हैं, अब आप लेबल करें इसकी साइड्स को। जो परपेंडिकुलर और इस एंगल थीटा के दरमियान वाली साइड होती है, आप उसको बेस लेबल करते हैं। दिस वन इज परपेंडिकुलर एंड दिस slanted one is hypotenuse. अब देखें, आपको ये साइड फाइंड आउट करनी है which is base। हाइपोटेनस के टर्म में आपने अपनी वैल्यू रखनी है। कौन सी फिजिकल कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो इन दोनों को आपस में रिलेट कर सकता है, बेस और हाइपोटेनस को? इट इज cos थीटा, राइट, बिकॉज cos थीटा इज बेस ओवर हाइपोटेनस। रीअरेंज करें, आपको बेस की वैल्यू निकालनी है, so you'll write base equals hypotenuse times cos theta. Hypotenuse क्या है आपके पास? It is f. Hypotenuse is f cos, see theta लिखते हुए कंफ्यूज ना हो, आपने ये ट्राइंगल कंसिडर किया है ना, राइट। तो आप इस ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल रखेंगे which is 60, राइट। So you'll write 60. So आप अपने फार्मूला में इस y कंपोनेंट की जगह क्या लिखेंगे? This one, right, because आपको ये फोर्स रखनी है, आपको पता चल गया दिस फोर्स इज f times cos 60. So you'll write, let me change the color, you'll write f cos 60. Now f की वैल्यू तो आपने फाइंड आउट करनी थी, रीराइट दिस इक्वेशन, 10 into 1 is 10 over ये वाला 2 आ गया इधर and then cos 60 here, this f right here. Place these values in your calculator and you'll end up getting final answer that is 10 Newton. Then 4 combinations of vectors are shown, each representing all the forces acting on an object. The forces all act in the same plane. Object is in equilibrium.
Which combination of vectors could represent the forces acting on the object?